प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर की 5 दिवसीय यात्रा पर आए तमिलनाडु के युवाओं के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की बातचीत। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक अनवर की उपस्थिति में आज कांग्रेस मुख्यालय श्रीनगर में अधिवक्ता दीपिका सिंह रजावत फिर से कांग्रेस में हुई शामिल। एमबीबीएस छात्रों ने जीएमसी बारामूला में किया विरोध प्रदर्शन। ओपन मेरिट डॉक्टरों के लिए एसआरओ 49 की बहाली की मांग। सीआरपीएफ की 35 बटालियन द्वारा बड़गाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। जम्मू नगर निगम द्वारा पर्यावरण शिक्षा केंद्र के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। युवा संगम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के हिस्से के रूप में कार्यक्रम शुरू किया है और इसी के सिलसिले में यहां पर आए तमिलनाडु के युवाओं से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनसे बातचीत की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर की 5 दिवसीय यात्रा पर है। I am pleased to be with all of you this afternoon. First of all, I would like to thank Ministry of Education for this great initiative of Yuva Sangam aimed at strengthening people-to-people connect among youth across different states and union territories. Jammu Kashmir is paired with Tamil Nadu under this initiative to promote unity in diversity by facilitating meaningful interactions, cultural exchange, and knowledge sharing among youth. When I look at the two regions, I see the inspiring chapters of rich ancient Indian history, contribution of men and women who shaped the destiny of our country. And I must tell you that there is a timeless bond between Tamil Nadu and Jammu Kashmir. I strongly believe that Jammu Kashmir and Tamil Nadu are eternally connected since time immemorial. Friends, I vividly recall my visit to Chennai in January 2023 to attend the Vitasta festival under Azadi Ka Amrit Mahotsav and my interaction with youth at Kalakshetram Foundation. I find such engagement the most powerful instrument to strengthen our unity. I am truly grateful to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has unlocked the power of diversity with the spirit of oneness. The great Thiruvalluvar had written that learning lacks meanings if learner believes not in him. I see the youth of our country are full of self-confidence today and not scared or afraid of exploring the unknown. The social consciousness of our youth is sharp and they have big dreams, not just for themselves, but for the development of this great nation. This gives me hope that you will not only contribute to the betterment of society, but you will also achieve the self-growth. I am also happy to see that all the modern facilities are being made available to our youth and they are empowered. Youth-specific and youth-related policies and programs have been launched in the last 10 years to create an enabling environment to realize their dreams. Now, our youth have started thinking about the future that they want. They are also working towards constructive change for a prosperous society and nation based on equality and social justice. I hope during your visit to Jammu and Kashmir you will have multi-dimensional exposure under 5 broad areas as envisaged
in the Yuva Sangam initiative. I also hope that in the years to come, more and more such exchange will take place. I invite you all to enjoy our hospitality and enjoy the incredible sights and sounds of Union Territory of Jammu and Kashmir. I wish you all a bright and happy future. Thank you once again. Jai Hind. कांग्रेस मुख्यालय श्रीनगर में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक कर्रा की उपस्थिति में अधिवक्ता दीपिका सिंह रजावत फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना जम्मू और कश्मीर में एकता, शांति और विकास की अपनी मजबूत विचारधारा को उजागर करना है। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों के समर्थन और सामुदायिक कल्याण में कांग्रेस की भूमिका की भी सराहना की। सबको, मैं तो सभी लोगों को बोलूंगी कि वी नीड टू सपोर्ट द कांग्रेस, वी नीड टू, बिकॉज कांग्रेस हैज द आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी। एंड मुझे लगता है मेरे जैसे लोग या जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट कर सकते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो डिवीजन में बिलीव नहीं करती है, जो स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करती है, वेलफेयर में बिलीव करती है, पीस में बिलीव करती है। सो दैट हैज मेड मी टू ज्वाइन बैक द पार्टी अगेन, बिकॉज आई हैव टू बी विद एन आइडियोलॉजी, और अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो माई प्रिंसिपल्स आर विद द आइडियोलॉजी विच कांग्रेस कैरीज। ये मुझे बताया कि एंड जम्मू कश्मीर के लिए है सर, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर अगेन। और मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बेस्ट दे सकूं, मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के लिए काम कर सकूं, under the guidance of our President साहब, करा साहब, and with other leaders. I'll try my level best कि मैं अच्छे से काम कर सकूं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चौड़े समय तक जो कश्मीरी पंडित का जो कार्ड है वो खेला अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू की बात करें, कश्मीर में तो उतना उसका ग्रिप था नहीं, लेकिन जम्मू में एक भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत वहाँ पे दर्ज की। तो करंटली जम्मू को कैसे देखते हैं आप, और इस एक पॉलिटिकल प्ले कार्ड को कैसे देखते हैं आप? See, the political play card which Bharatiya Janata Party has been playing, I must say, playing with the emotions, sentiments of people, और उनको वो कैश तो कर लेना, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस के साथ खेल तो लेना, उसको कैश भी कर लेते हैं। बट देखने की बात ये है कि क्या वो उनके साथ एक्चुअली खड़े होते हैं? आई बिलीव वो खड़े नहीं होते हैं। अगर आप कश्मीरी पंडित्स का ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू थिंक कश्मीरी पंडित्स हैव रिटर्न बैक? Do you think their welfare, their rehabilitation has been ensured? It was Congress. It was Congress which ensured the welfare. It was Congress which ensured their, the setup in Jagti or the PM's package. Right. Do you think Bharatiya Janata Party has done? Bharatiya Janata Party has not done anything. It is Bharatiya Janata Party, if at all Bharatiya Janata Party is doing, it is only playing with the emotions, sentiments. Use करते हैं, यूज करने के बाद भूल जाते हैं। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। कोई शक नहीं है इस बात का कि आज आप एक मैसेंजर बनने जा रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। व्हाट इज योर मैसेज टू देम? माय मैसेज फॉर माय कम्युनिटी इज टू स्टे टुगेदर, स्टे यूनाइटेड, एंड अंडरस्टैंड करें कि उनके साथ कौन था पास्ट में, और उनको उन्हीं के साथ खड़े। देखिए, एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जो आपके साथ तब था, आपको उसके साथ खड़ा होना है। जिसने आपको घर दिया, जिसने आपको छत दी, जिसने आपको रोजगार दिया, यू नीड टू बी देयर विद द पीपल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया हमें? आपको क्या दिया? कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? एक्सेप्ट फ्रॉम प्लेइंग, एक्सेप्ट फ्रॉम हिंदू कार्ड, व्हाट भारतीय जनता पार्टी डज? नथिंग, राइट? सो माय मैसेज फॉर माय कम्युनिटी इज दैट दे नीड टू सपोर्ट Gandhi's ideology, Nehru's ideology. They need to be there for the welfare of, not for the welfare of one community, for the welfare of the whole of the state of Jammu and Kashmir. Right. And it's about the state of Jammu and Kashmir. It is about the statehood. It is about our identity. It is about the peace. It is about the development. It is not about the division. मैम, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप कांग्रेस में थी तो आपने कांग्रेस छोड़ा क्यों और दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन किया? क्या ये लीडरशिप क्राइसिस थे या कुछ और? देखिए, ये कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं थे। कुछ पर्सनल रीजंस थे, मनमुटाव हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होता है। I also had my personal reasons. Now today it's such a बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत एक जुमा भी है। मैं शंकराचार्य से दर्शन करके भी आई हूँ। मुझे नहीं लगता वी नीड टू डिग दी जो पीछे पास्ट, लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। आज एक नई बिगनिंग है। व्हाई आई लेफ्ट वाज अ सेपरेट क्वेश्चन। आज बात ये करें कि मैं क्यों आई हूँ और मेरी आइडियोलॉजी क्या है। माई आइडियोलॉजी इज दैट आई नीड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट।
सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में एमबीबीएस छात्रों ने SRO 49 की बहाली की मांग करते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य नीति में सरकार के हालिया संशोधनों के संबंध में उनकी शिकायतों को उजागर करना रहा। छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि SRO 49 ने ओपन मेरिट डॉक्टरों को कैरियर में उन्नति जैसे आवश्यक लाभ प्रदान किए हैं और इसके निरस्त होने से उनके लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने नियम 17 के तहत कठोर नीतियों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उनका मानना है कि ये चिकित्सा समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने SRO 49 को बहाल करने और नियम 17 की समीक्षा करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, बाहर देखने के लिए वहाँ रेजर्वेशन नहीं है, तो इंडिया तो आपका मतलब ये है कि इस पे ये भी फर्क होगा जो आने वाले जो आप इस वक्त जो रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट है अभी जो स्टेट में जो JNK में रिजर्वेशन पॉलिसी है, पहले तो इतनी रिजर्वेशन किसी भी और स्टेट्स में आप देखोगे उस हिसाब उसमें उनमें पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है, बट नॉट इन JK। इन JK वी सी व्हाट कि 70% जो पॉपुलेशन है उनको उनके लिए 26.6 सीट्स अवेलेबल है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट इज़ सो ईजी टू कॉम्प्रहेंड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। सेकेंड जो है जो रूल 17 है, रूल 17 के अकॉर्डिंग जो एक कैटेगरी वाला बंदा है वो अगर ओपन मेरिट में उसको सीट मिल जाती है तो वो कैटेगरी यूज़ करता है टू गेट हिज डिज़ायर्ड ब्रांच और टू गेट हिज डिज़ायर्ड कॉलेज, लेकिन उसकी जगह जो सीट खाली हो जाती है उस जगह पे दूसरा कैटेगरी वाला बंदा आ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा सिस्टम है दिस इज़ इट सीम्स टू मी एज इफ ये कैटेगरी वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है, जस्ट 26.6% सीट्स फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। इस हिसाब से लगता है कि वाई आर इवन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स कम्पीटिंग इन दिस। कोई कम्पीट करने का भी मतलब नहीं है। मतलब मैं तो एट टाइम्स ये सोचती हूँ वाई आर दे गिविंग 100% टू कैटेगरी सो दैट कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है वो इतनी मेहनत करते हैं फिर उसके बाद उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं, उसकी वजह से ना ही उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उनकी इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है। पूरी तरह ना ये सिस्टम इनको हैंडीकैप कर देता है। नाउ व्हाई डू आई से हैंडीकैप? पहले इनको सीट नहीं मिलती है डिस्पाइट पुटिंग देयर बेस्ट, डिस्पाइट गेटिंग द डिज़ायर्ड मतलब रैंक जो उनको चाहिए होती है, वो ऑल इंडिया रैंक जो उनको चाहिए होती है वो उनको मिलती है। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक होती है, बट स्टिल आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इट। तो उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और यहाँ से जॉब भी गई, फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं रहते। तो in a way it cripples open merit population, it just crushes them। तो ये हो गया रूल नंबर 70। एंड देन जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग ये डिज़र्व भी नहीं करते, उनको ये मिलती है। बहुत सारे EWS कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इनकम नहीं होता है फिट इनकम क्राइटेरिया में, और बहुत सारे रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ के बंदे हैं जो नहीं एक्चुअली रहते हैं उन रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ में। तो देन गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर कि कौन कौन डिजर्व कर रहा है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। पहले तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए। सो वी वॉन्ट SRO 49 back for that। Second rule number 17 जो है that should be eliminated। Third, government should look into this matter that who is deserving this category certificate, only that person should be given it। तो third जो कि PG में तो ज़्यादा ही है, because in UG में तो कैटेगरी के बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन हो गई, उसके बाद शेयरिंग द सेम कॉलेज, शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, शेयरिंग एवरीथिंग, उनको फिर नीट PG में फिर से हाउ इज़ अगेन कैटेगरी जस्टिफाइड देयर? अगर उनको सेम ही मिल रहा है फिर इसी कॉलेज, फॉर इंस्टेंस GMC बारामूला है, कल को अगर नीट PG में यहाँ 2 बंदों की सिलेक्शन हो जाती है, एक बंदा कैटेगरी वाला है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 60K रैंक है, दूसरा बंदा ओपन मेरिट का है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 6K रैंक है, ही विल बी एबल टू गेट वट एवर ही डिजायर्ड दिस 60K कैंडिडेट बट नॉट दैट 6K कैंडिडेट। हाउ इज़ दिस जस्टिफाइड? दिस इज़ लाइक आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा रहे हो मेडिकल फील्ड में और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए। यही चाहते हैं हम कि SRO 49 should be brought back, rule number 17 should be eliminated, this whole reservation system should be given according to the population, that's it। 35 बटालियन CRPF द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर 35 बटालियन के CEO विष्णु द्विवेदी ने कहा कि ऐसे ही और भी शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसमें CRPF की मेडिकल टीम जरूरतमंद स्थानीय जनता तक पहुंचती रहेगी और उन्हें अपनी सेवाएं देती रहेगी। जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स होती हैं इसको सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कहा जाता है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उसके तहत होते हैं। आज का प्रोग्राम है फ्री मेडिकल कैंप। फ्री मेडिकल कैंप इसलिए लगाया गया है कि जो यहाँ पे हमारे आम कॉमन मैन हैं
बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दूर नहीं जा सकते हैं, बीमार हैं, तो हम उनके दरवाजे तक लेकर आए हैं। ये हमारे अपने कैंप पे फ्री मेडिकल कैंप जो आज लगा हुआ है, यहाँ हमारे 3 डॉक्टर्स, ढेर सारे ऑफिसर्स और सारी दवा के साथ अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पे आसपास के लोग हैं जिनको भी मेडिकल की ज़रूरत है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा। जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो दवा दिया जाएगा, उनको सारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से फ्री प्रोवाइडेड है। यहाँ पर किस तरह का इलाज है? क्या हर कोई तरह का, मतलब किसी भी तरह की जो बीमारी होती है, किसी भी तरह का किसी बहुत गंभीर बीमारी का तो तत्कालिक इलाज यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो एक कॉमन बीमारियाँ होती हैं जिनका तत्कालिक दवाई दिया जा सकता है, ऐसी सारी चीज़ों को तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई आदमी गंभीर बीमार है, उसका कुछ पता चलता है, तो हमारे डॉक्टर्स उसको आगे रेफ़र कर देंगे। आज मैं आया था यहाँ पे, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है बॉयज़ हायर सेकेंडरी बड़गांव में CRPF की जवानों की तरफ से। ये बहुत ही एक अहमियत हमारी ज़िंदगी में रखता है, क्योंकि ख़ासकर गरीब आवामों के लिए सबसे बड़ी अहमियत हमारी मतलब रखता है इस ज़िंदगी में। दूर दराज इलाकों से आते हैं लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल जब भी सुनते हैं, मतलब एक जब हम एक समाजी काम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जो फ्री मेडिकल कैंप जो अभी बड़गांव में लगा हुआ है, तो एक अच्छा हमारे, मतलब मैं कह सकता हूँ एक अहमियत रखता है हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ CRPF जवानों की तरफ से, जिन्होंने ये इक़दामात उठाए इस बड़गांव। ये जो कैंप लगा है ना 35A का, CRPF कैंप 35A का, उन्होंने इतनी फैसिलिटी रखी कि अगर हम पर्चा लेकर जाते हैं, ये खुद भी मेहनत करते हैं, साथ आते हैं, और एक पर्चे में कम से कम 10 हज़ार का दवाई जो बाजार से मिलता है वो देते हैं ये मुफ्त। तो इनकी फैसिलिटी अगर लोगों को आएगा हफ्ते 1 महीने में 4 बार, क्योंकि यहाँ बहुत बीमारी है। मोदी का जो दवाई दुकानों पे होता है वो आम दुकानों में नहीं मिलता है। हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे बहुत लाइन लगते हैं, वो तो 5 रुपए की पर्ची होती है, 10 हज़ार का दवाई देते हैं, वो भी नहीं मिलता है। ये अच्छी बात है, उन्होंने 35A में आज बहुत तीसरी बार उन्होंने किया, ये एक ही बार नहीं, तीसरी बार इनकी फैसिलिटी है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र के सहयोग से जम्मू नगर निगम द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर 2 दिवसीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मनदीप कौर, प्रधान सचिव आवास और शहरी विकास विभाग ने जम्मू नगर निगम के आयुक्त देवांश यादव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष वासु यादव की उपस्थिति में किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डोर टू डोर कलेक्शन सही तरीके से हो और सड़कें साफ सुथरी रहें, ताकि स्वच्छता में जम्मू की मिसाल बने। 2 दिन की वर्कशॉप सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ मिलकर JMC ऑर्गेनाइज करा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर अलग अलग डंपिंग साइट्स का बायो रेमेडिएशन किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। डोर टू डोर कलेक्शन अच्छे से चले और कूड़ा कचरा हमारी सड़कों पे ना रहे, इसके लिए सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। इस वर्कशॉप में पूरे जम्मू कश्मीर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, EOs म्यूनसिपैलिटीज़ के आए हुए हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम के डायरेक्शंस के अंडर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1.5 साल में, यानी कि 2026 मार्च तक हमारे सारे ही स्वच्छ भारत मिशन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए और हमारे जम्मू कश्मीर को हम सही मायने में स्वच्छ बना सकें। आज की ये वर्कशॉप इसी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना पूरी होने के बाद से दुकानदारों को परेशानी हो रही है और व्यापार कमजोर हो गया है। कुछ होटलों, दलालों आदि द्वारा व्यवसायों को बढ़ाया गया है, लेकिन कम ग्राहकों क्या यहाँ पर आना जाना रहता है, क्योंकि उन्हें पार्किंग का शुल्क देना पड़ता है, जबकि पहले कहा गया था कि ग्राहकों के लिए मुफ्त पार्किंग रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। कैंडिडेट ये पर्सन है और कैंडिडेट का ये, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट को सैंपल चाहिए, कैसे प्रचार करना है न्यूज़पेपर में। भैया हम बीइंग अ प्रेसिडेंट हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 दिन में हम क्या करें? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा उन्होंने कहा हमें ऊपर से ये प्रेशर है, जस्ट ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा क्या प्रेशर है ऊपर से? ट्रेड के ऊपर भी कोई प्रेशर करने वाला है? कहा हमें जी पुलिस का प्रेशर है। पुलिस अपनी जगह और हम अपनी जगह। जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट।
उसमें सब डिसबैंडेड है। उसने जो बोला है वो गलत ही है, क्योंकि No, just इनको बताने दीजिए। he is a fact, he is out of this association, and जो गैदरिंग वहाँ पे थी, all they are disbanded, nobody is on his position. यासिन खान भी थे ना, वो KTMF के। नहीं, he is under stay, वो अभी KTMF अभी functional नहीं है, that's not, KTMF is not functional, जो स्टे आप लोगों की तरफ से लाया that's for trade, this not for हाँ जी। जो आप लोगों ने स्टे लाया था वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ना इलेक्शन से भी ये भाग रहे हैं। नहीं, जब मेरी बात हुई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनने कहा मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे को 4 दिन में इलेक्शन करना है। मैंने कहा मेरे को आई एम नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट, मैं कोर्ट गया और मैंने उसको स्टे लाया। आपसे ज्यादा लोग उनके साथ में भी थे कल, तो कैसे हम माने कि वो गलत है, आप सही है? नहीं, लोग जब आप मेरी बात सुने, अब मेरी ये देखें ना, मेरा आई हैव गॉट द लिस्ट ऑफ दिस ना हु इज़ विथ मी, हमारा जो मैंडेट है उसकी हमने लिस्ट बना के रखी है, वो हमारे बिल्कुल साथ में, हम हमें ये इट्स नॉट एनी, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है आज? मेन यही है, ऑल दे आर डिसबैंडेड। जो भी वहाँ एक पार्टी उधर खड़ी थी, दे आर फ्रॉम कोर्ट रोड, वो भी हारी हुई पार्टी है। एक फेरोज बाबा है, उनका तो ये सामने बिल्कुल है। और हु इज द थर्ड पर्सन देयर? ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको हम जिस दिन हमने मिनट्स बुलाए थे, मिनट्स का मिनट्स हमने लिखा था गुलाम अहमद डार को 1 मिनट दे देंगे। 4 दिन के बाद उन्होंने डिसॉल्व किया था अखबार में, और वो किया था, साथ ही लिखा था उसमें fresh election of the TSL shall be held on October 7 under the supervision of member nominated by the Kashmir Traders and Manufacturers Federation Mohammad Aslam Muttu shall be the election commission। जिस वक्त हमने कंटेक्ट किया था KTM को, उन्हें बोला हमारा कोई मोहम्मद असलम मुत्तू का इलेक्शन कमीशन नहीं था, ये फ्रॉड उन्हें अखबार में गया था। हमने कंटेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को, हमने बोला 2 दिन और करो, वोटिंग लिस्ट इनकम्प्लीट है, बायलॉज इनकम्प्लीट है, अंजुमन सीरिया शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन ने शुक्रवार को सीरिया के लोगों के बीच शांतिपूर्ण समाधान और एकता की जोरदार अपील की। शुक्रवार की सामूहिक प्रार्थना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व हुर्रियत नेता ने इस बात पर जोर दिया कि सीरिया में सभी संप्रदायों और समुदायों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना क्षेत्र में चल रहे मुद्दों के समाधान के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हाल ही में हमलों की भी निंदा की। उन्होंने सभी समुदायों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सरकारों और समाजों से सद्भाव और न्याय को प्राथमिकता देने की भी अपील की। आगा साहब, जिस तरह से शाम में हालात बने, हालांकि आपने जुमा खुतबा में भी इसका जिक्र किया, तो किस तरह से शाम के हालात पर आप बात करेंगे, किस तरह से तजिया करेंगे? नवीद थोड़ा पूरा आलम इस बात का मुतकाजी है, जो इस वक्त शाम की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और बाइस तशवीश है। हम ये चाहते हैं जितने भी शाम के मसालिक हैं, कबीले हैं, वो सब मिलकर अपने मर्जी से और अपने ख्वाहिश से अपना निज़ाम तय करे, वही शाम के लिए बेहतर रहेगा। उसी से पूरे शाम में अमन अमान कायम हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। मैं इसी पर जोर देता हूँ। शाम के लोगों को मौका दिया जाए, वो अपने हुकूमत
खुद बनाए, दूसरा कोई इसमें मुदाखलत करने से दूर रहे, वही शाम के लिए बेहतर है। किस तरह से शाम का मसला मुस्लिम ममालिक के लिए या मुस्लिम दुनिया के लिए मतलब किस तरह से इसका असर मुस्लिम दुनिया पर होगा? ये बहुत गंभीर मसला है। अगर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज डीसी ऑफिस मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले में आधार संतृप्ति की प्रगति की समीक्षा की गई और नामांकन और अपडेट से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रैना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारामूला सहित कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीसी बारामूला ने सरकारी सेवाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार के महत्व को रेखांकित किया और निवासियों से, विशेष रूप से उन लोगों से जिन्होंने 1 दशक से अधिक समय से अपना आधार अपडेट नहीं किया है, अपने जनसांख्यिकी विवरण, बायोमेट्रिक्स और सहायक दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया। और माता पिता को सलाह दी गई कि वे अपने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक विवरण को 5 और 15 वर्ष की आयु में अपडेट करवाएं ताकि उनका आधार सक्रिय रहे। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि हमारा मामला एसीबी देख रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस मामले को सुलझाने में और कितना समय लगेगा। उन्होंने ये बताने की इच्छा जताई कि उन्हें बहाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरेंगे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिसके जिम्मेदार केवल और केवल एलजी सरकार होगी। आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो एसीबी है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के जरिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ आर.के. गोयल लेड कमिटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलजी साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस एसीबी को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार है। रिसेंटली जो एसीबी का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगे। उसके बाद हमें एफआईआर लॉन्च करने हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहां पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, एसीबी को अपना काम करने दो। जब तक एसीबी का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट एसीबी का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिजाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया, आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है we are crying since 2020 but unfortunately LG of this duty never listen our voice but the genuine issue of fire and emergency scam। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगी हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके बच्चे नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब एलजी मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता
है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, अब 10 से मस्त नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, मुझे बताइए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए आप इन स्कैमर्स को बचाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में, मेहरबानी कीजिए इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, जहां हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। नीदरलैंड स्कूल सोपोर के अध्यक्ष एजाज मसूदी ने प्रवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन छात्रों की सहायता करना है जो गरीब परिवार से हैं और छात्रों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा है। Or any other charges which are not genuine with the admission. तो इंशाल्लाह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला के स्कूल है, हमने पिछले साल भी कोई एडमिशन नहीं दिया, एडमिशन फी नहीं दिया और कोई भी ऐसी चार्ज हमने नहीं दी जो नॉन जेन्युइन हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैद साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि जहाँ तक हमारे स्कूल का ताल्लुक है, ये सिर्फ मेरा स्कूल ही नहीं, जो दूसरे स्कूल भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, जो हमारी एसोसिएशन है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का। मैं हर एक की तरफ से आपको बात करूँगा और ख़ास तौर पर मैं अपना बता दूँ कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस साल हमें बताया है कि एडमिशन फ़ी कोई स्कूल नहीं दे सकता है, नहीं देगी। इंशाल्लाह इस साल भी जस्ट वो एडमिशन चार्जेस 1000-2000 तक होती है, वो तो लेने पड़ते हैं हमें। इसके बाद जो ईयरली चार्जेस है हमारे स्कूल में, लेवेस्ट ईयरली चार्जेस 1400 से लेकर 3000 तक है। किसी बच्चे को 1400, 1500, 2000 तक, 3000 तक है हाइस्ट। तो उस स्ट्रेटजी को हम इंशाल्लाह इस साल भी जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इस साल हम तकरीबन 250 एडमिशन नर्सरी के लिए बुक कर रहे हैं और ये सारी बुकिंग इंशाल्लाह या 20 या 24 दिसंबर को होगी। तब तक मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तकरीबन 200-250 फार्म्स पेरेंट्स से ऑलरेडी ले लिए हैं, 200-250 फार्म्स। तो कुल मिलाकर हम नर्सरी में 250 बच्चे ले लेंगे 20 या 22 दिसंबर को इस साल। तो इसके बाद जो दूसरे क्लास में कई 10-12 सीटें इंशाल्लाह 350 तक हम एडमिशन बनाएंगे इस साल, 350 तक। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ वो फार्म ले ली ब्रांच स्टार से जल्द, क्योंकि इस साल मार्च में कोई एडमिशन नहीं दे देंगे। जब हमारी 250 सीट्स लास्ट डेट कब तक होगा? लास्ट डेट एडमिशन 20-22 तक हम दे देंगे फॉर्म, 23 या 24 या 22 को ही हम टेस्ट ले लेंगे। मावन निवासी सादिक आलम अपने स्थानीय समुदाय में एक संपन्न मछली फार्म स्थापित करके आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की मिसाल बन गए हैं। सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय आलम ने अपनी आजीविका बनाने की पहल की। इस प्रक्रिया में दृढ़ संकल्प और व्यवहारिक कौशल का प्रदर्शन दिया। आलम ने मछली पालन उद्यम ने लगभग 5 से 7 लाख रुपए का प्रभावशाली कारोबार हासिल किया है। उनकी सफलता व्यक्तियों के लिए अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना खुद का व्यवसाय बनाने की क्षमता को उजागर करती है। मेरा नाम सदीक आलम है। मैं यहाँ मोनावाल में बांडी में रहता हूँ और पिछले 2 साल से मैं इस फिश फार्मिंग के साथ लगा हूँ, वाबस्ता हूँ जी। तो आजकल जो है बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो मुझे आइडिया है, क्योंकि हमारी जो हमारी ज़मीन यहाँ पर थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं बेकार है। तो मैंने इसी बीच सोचा कि मैं क्या कुछ ना कुछ इसमें करूँ। तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से, फिशरी डिपार्टमेंट की मदद से मैंने यहाँ पर एक क्राउड
करोड़ फिश यूनिट खड़ा किया, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इनकम मैं इससे जनरेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल नौजवानों को जो है वो नौकरी के पीछे न दौड़े, अपना कोई बिजनेस कोई ना कुछ खड़ा करे ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके। तो हाँ बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कम से कम 4 से 5 जो है इस वक्त बंदे जो है हमारे साथ काम करते हैं, तो उनका घर भी चलता है और इंशाल्लाह हमारा घर भी अच्छे से चलता है। फिशरीज डिपार्टमेंट के बगैर तो कोई कुछ मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें सब्सिडी दी ये सब बनाने में। तो और जो उनके वो ऑनेस्ट अफसर है, उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया सब में ये सब बनाने में। मैं पढ़े लिखे आज के जो नौजवान है उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी टांगों पे खड़ा हो, कुछ ना कुछ करें, ये गवर्नमेंट जॉबों के पीछे न पड़े, ताकि आजकल जो हमें बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, मुझे लगता है कि उनका फायदा उठाए तो वो मतलब कभी भी मतलब उनको ये नहीं लगेगा कि हम बेरोजगार हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।